Good evening, sir. Good evening. This question I have given in the last class. Could you do it? Yes, sir. 780 आया. 780? Yes, that's the correct answer. That was the correct answer. सबने कर लिया? Shall I skip it? Yes, sir. Okay. So today we are going to discuss about the previous year's questions, IIT Advanced. Okay. तो JEE Advanced का हम questions लेंगे आज. Previous year's questions. Okay. 2009 to 2019. All the questions we'll try to take. PNC. Okay, we'll write the first question. That question came in 2009. The number of seven digit integers with sum of the digits equal to 10 and formed by using the digits 1, 2 and 3 only. If the options are A 55, B 66, C 77, or D, or is it D 88? Again, try to understand the question. What is it given? It came in 2009 advanced, okay? 2009 JEE actually. That time it was not advanced, JEE. क्या बोला है questions क्या बोला है? The number of 7-digit integers. We have to find out all 7-digit integers with sum of the digit is equal to 10. मतलब जो 7 digit हम लेंगे उसका sum 10 होना चाहिए. And it is formed by 1, 2 and 3 only. Question straightforward है. Question is quite straightforward. से straightforward question JEE में बहुत कम पूछते हैं. ये quite straightforward question है, कोई इसमें ये नहीं है. Can you tell me what we are going to do here? You have to select, So we right? will make First cases. cases. अच्छा, good. क्या क्या केस होगा बताओ. केस 1. चलो तुम्हारा ही मैं मान रहा हूँ. Cases will make cases. What all cases are you going to make? So we will give the numbers 3, 3, 1, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 1. देखो 5 1 लेना पड़ेगा हमको, है ना? 5 ones, ठीक है. 5 ones कितना हो गया? 5 हो गया. 5 ones में 5 डिजिट हो गया और 2 डिजिट बाकी है. 1 2 ले लिया. समझ में आ रहा है? Yes, 1 sir. 2 एंड 1 3 हो गया. 10 हो गया. ये 5 प्लस 2 प्लस 10 3 सम 10 हो गया. सम 10 बराबर हो गया और 7 डिजिट भी हो गया. देखो यहाँ 5 डिजिट है, 6 डिजिट, 7 डिजिट. चलेगा ये? चलेगा ये? Yes, sir. Yes, sir. तो हाउ मेनी वेज? ये तो सिलेक्शन हुआ ना. तो हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज? How many way can we arrange?
How many ways it can be arranged? 7 factorial by 5 factorial, 5 right? factorial, 2 factorial, 3 factorial. 2 factorial, 3 अच्छा factorial हाँ, क्यों but आएगा only भाई? 5 factorial. Only 5 factorial, नहीं right? आएगा. 2 factorial, 3 factorial will not come. It is only 1 1, no? 1 2s and 1 3s. Okay, so 2 factorial, 3 factorial will not come. So what you are going to get here? 42. ठीक है. अब केस 2 और एक केस बनेगा, और क्या कितना केस बनेगा पता नहीं, और एक केस बना के देखते हैं. यही तो अकेला केस होगा क्या? और भी केसेस होंगे शायद कि नहीं बनेगा? तो बनेंगे सर. बोलो क्या केस बनाओगे? सेकंड केस क्या बनाओगे? सेकंड केस क्या बनाओगे बोलो? यहाँ 5 1 लिया था ना, ये तो हाईएस्ट नंबर ऑफ 1 ले लिया हमने. इससे ज्यादा 1 तो हो नहीं पाएगा. 6 1 लेंगे तो तो 4 1 बढ़ and जाएगा. 3 2s. हाँ बोलो बोलो बोलो. हाँ, तो 4 1 and 3 2s. 4 1s. अब देखो 5 1s इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ 1s वी कैन टेक. 6 1 हम ले नहीं सकते क्योंकि 6 हो जाएगा. फिर 3 लेंगे हाईएस्ट नंबर तो भी 9 हो रहा है ना. समझ में आ रहा है ना? तो इससे कम Yes. लेना पड़ेगा. तो 4 1s में आते हैं. 4 1s, हाँ, तो 4 हो गया इसमें. सम, यहाँ सम लिख रहे हैं ना, सम 4 हो गया यहाँ. और क्या लेते हैं? 3 2s. 3 2s. 3 2s. तब क्या हो जाएगा? 3 2s मतलब 6. सम तो 4 हुआ. अभी नंबर कितने हुए देखे? देखो यहाँ 2 हुआ, या सॉरी यहाँ 3 हुआ और यहाँ 4 हुआ, तो 7 डिजिट नंबर तो बन रहा है. तो ये एक केस हुआ. ठीक है. हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन? हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन? 7 factorial by 4 factorial, 3 7 factorial. factorial upon 4 factorial, 2 factorial, 3 factorial. 3 factorial because we have taken 3 2s here. तो ये कितने होंगे? कैलकुलेट करो. 6 6 कैंसिल जाएगा. 30 तो 30 35. 35. हाँ 35. और केस बनेंगे क्या? और भी केसेस बनेंगे क्या? और केस बनेंगे क्या? अब क्या करना पड़ेगा? 3 1s. तो 3 1 के लिए देखेंगे. 3 1s, हाँ 3 1s देखो. 3 1s 3 हुआ, यहाँ 3 हुआ. अब क्या करेंगे? 2 2s and 1. 2 2s तो 4 हुआ और यहाँ 2 हुआ और एक 3. और एक 3. यहाँ 3 हुआ, यहाँ 1 हुआ. 10 तो हो रहा है लेकिन यहाँ तो 7 डिजिट नहीं हुआ ना भाई. यस. तो और 6 केस डिजिट नहीं नंबर बनेंगे. बना और केसेस नहीं बनेंगे. देखो यहाँ हमने हाईएस्ट से शुरू किया था. 5 1s will be the highest. You have understood that why we have started with 5 1s? Have you understood that why have we started with 5 1s? Understood? No. 6 1s हो नहीं पाएगा. 6 1s होगा तो 9 डिजिट 9 हो जाएगा. Yes sir. समझ में आ रहा है ना? हेलो, ठीक है. तो Yes, sir. cases only this only, therefore required number of ways is 42 plus 35. कितना हुआ भाई? 77. So the correct answer is this. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. पुष्पक, तुमने जो क्वेश्चन दिया था उसी का मिला जुला के मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ. शायद तुमको थोड़ा सा ये मिल जाए, हिंट मिल जाए. तुम ट्राई करना आज फिर से. लेट Yes. let s equal to 1 2 3 and 4. Again, let s equal to 1 2 3 4. The total number of, ये बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है. One of the most
important question and it's a kind of question, मैं वो भी बता दूं तुमको, ये एक kind of question, ऐसा question आते रहते हैं, it's a kind of question, ये 2010 में आया था जेई. Let s equal to 1 2 3 4, the total number of unordered pairs of disjoint subsets of S is equal to your options are this: A 25, B 34, C 42, D 41. क्वेश्चन समझो पहले, क्वेश्चन नहीं समझोगे तो आंसर नहीं कर पाओगे. क्या बोला है कि S has got 4 elements. We have to find out total number of unordered pairs. हमको दो चीजें समझना है यहाँ. Unordered pairs of disjoint subsets of S. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ जो मैं अंडरलाइन करके रखा हूं, ये लाइन का मतलब मुझे कोई बताएगा? तो 1,4 meaning- और 4,1 अलग अलग नहीं है. टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स. डिसजॉइंट सबसेट्स तो तुमको समझ में आ गया होगा. मान लो ए और बी मैंने दो सबसेट लिया. किसका किसका सबसेट लिया? मैं एस का लिया. तो हमको ऐसा ए कमा बी ढूंढने के लिए बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5. समझ में आ रहा है ना? हेलो, डिसजॉइंट का मतलब यही है. टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज 5. डिसजॉइंट जॉइंट नहीं है. समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर. है ना? तो एक कंडीशन तो ये है. अब अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? तो मैं समझा देता हूँ. अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझो. हाँ, तुमने सर किसी ए ने जो बोला था. इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए को अलग अलग नहीं लेंगे. हाँ, एग्जैक्टली. मतलब ए कॉमा बी और बी कॉमा ए को हम अलग अलग कंसिडर नहीं करेंगे. मान लो मैंने एक ए सेट मिला मुझे 1,2,3 मान लो, और एक मैंने बी सेट लिया. क्या क्या लिया मैं? बी में 3 4 ले लिया. इंटरसेक्शन इज 5. तो ए कॉमा बी अगर मैं एक सेट बोल रहा हूं, मैं वो नहीं बोलूंगा कि बी कॉमा ए भी और एक सेट है और एक पेयर है. तो ऐसा एक ही पेयर चाहिए. मतलब समझ में आ गया ना? ए कॉमा बी और बी कॉमा ए अगर मिला, दो सेट होगा ना. ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए, दो सेट होगा ना. ए कॉमा Yes, बी sir. हमको हमको पेयर पेयर निकालने बोला है ना. ऐसा पेयर निकालो जो डिसजॉइंट हो. तो तुम बोलोगे सर बी कॉमा ए भी तो एक पेयर बन रहा है. हाँ, बिल्कुल बन रहा है, लेकिन हमको ऑर्डर कोई मैटर नहीं करना है. ए कॉमा बी बोल दिया तो काफी है. बी कॉमा ए नहीं लेंगे. समझ में आ गया? दैट इज द मीनिंग ऑफ अनऑर्डर्ड. और सेट का क्वेश्चन में हमेशा अनऑर्डर्ड ये यूज करेंगे ही करेंगे. मतलब तुमको एक ही बार गिनना है. ए कॉमा बी एक ही बार गिनना है. समझ गया ना? ऐसा कितने पेयर ऑफ सबसेट्स बनेंगे एस का जो कि डिसजॉइंट हो और अनऑर्डर्ड हो. समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? हेलो हेलो हेलो, समझ में आया क्वेश्चन? अब क्या Yes, होगा? sir. Yes, sir. कहानी क्या होगा इसका? कहानी क्या होगा? कहानी क्या होगा इसका? अभी कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे इसको? हाउ टू डू? हाउ टू डू? Sir, sir, question repeat. हाँ, देख लो. ये क्वेश्चन. एस एक Yes. सेट दिया है जिसमें 4 एलिमेंट है. हमको एस का सबसेट गिनना है. ऐसा ए कमा बी,
C, D ऐसा ऑर्डर्ड पेयर निकालना है, सॉरी अनऑर्डर्ड पेयर निकालना है, P, Q ऐसा पेयर पेयर गिनना है। ऐसा कितने पेयर आएंगे जो डिसजॉइंट हो, मतलब A इंटरसेक्शन B 5 हो, C इंटरसेक्शन D 5 हो, P इंटरसेक्शन Q 5 हो, ऐसा कितने सबसेट मिलेंगे इसका, ये पूछा है। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया? हेलो, ऐसा कितने सबसेट होंगे, ऐसा ऐसा कितने सबसेट होंगे, ऐसा कितने पेयर सबसेट होंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्वेश्चन? समझ में आ गया? मान लो कि मैंने A ले लिया 1 2 और B ले लिया 3 4, तो A इंटरसेक्शन B 5 होना चाहिए। ये हो रहा है, एक पेयर बन गया। ऐसा पेयर कितने बनेंगे? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? यस सर। इसको कैसे करेंगे अभी? सर ए का कोई सेट एज्यूम करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग कितना बी के वैल्यूज आ रहे हैं वो गिनेंगे। हाँ बोलो बोलो, फिर से बोलो। सर पहले सेट ए को कोई एज्यूम करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग कितने बी पॉसिबल हैं वो गिनेंगे। अच्छा, A को एज्यूम कर लेंगे, और अगर Yes, ऐसे करूं तो मैं, देखो S में कितने एलिमेंट थे? 4 एलिमेंट थे ना, 4 ही एलिमेंट थे, है ना? यस तो सर। मुझे कैसा ढूंढना है? A B ढूंढना है। नहीं, अब इसका 1 जो एलिमेंट है, ध्यान से सुनो मेरी बात, ये जो एलिमेंट है 1, ये या तो A में जाएगा, नहीं तो B में जाएगा। और कोई ऑप्शन है क्या? नो सर। और सर है ना? या तो दोनों में नहीं जाएगा, यस सर। या तो दोनों में नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा, मतलब मान लो और एक सेट बना लिया हमने C। नहीं, हमको ऐसा ऑर्डर पेयर चाहिए जो इंटरसेक्शन 5 हो, तो 1 जो एलिमेंट है, पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, मैं 1 का बात कर रहा हूं। 1 हैज द ऑप्शन ऑफ गोइंग टूवर्ड्स A और B और नाइदर। हेलो हेलो, यस सर। नाइदर sir. A और B। समझ में आ रहा यस सर। है कि नहीं भाई? यस है सर ना? तो 1 हैज 3 ऑप्शंस, so 2 has how many options? 3 options. ये आप 1 has 3 options। समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है? कैसे ऑप्शन कैसे निकाला? Yes, 2 या तो A options. में जाएगा, नहीं तो B में जाएगा, नहीं तो दोनों में जाएगा, दोनों में नहीं जाएगा, राइट? तो 1 has 3 options, 2 has 3 options, right? 3 has 3 options, 4 also has 3 options। so total कितने ऑप्शन हुए? 3 पावर टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस या ways कितने हुए? 3 to the power 4। there is no doubt in that। 3 to the power 4, there is no doubt in this। 3 to the power 4 कितना होता है भाई? 81। अब ये तो आंसर है नहीं भाई। ये ना कभी कभी ना तुमको यहाँ ना 81 भी दे देंगे, ये तो अच्छा हुआ ये तो नहीं दिया है। मान लो मैं 80 यहाँ 81 दे दिया, बहुत लोग तो इसी में टिक करके आ जाएंगे, लेकिन ये गलत आंसर है। क्या गलत है बताओ, इसमें क्या गलत है? इसमें हमने Sir, क्या इसमें गलत किया है? ये ऑर्डर्ड पेयर वाला It चक्कर आ गया contains इसमें। ordered. हाँ, हमको इसमें ऑर्डर्ड पेयर वाला भी घुसा हुआ है। समझ गया? ऑर्डर्ड पेयर वाला घुसा हुआ है मतलब, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो A इक्वल टू मैंने जो पहले शुरू किया था 1 और B मैंने ले लिया 2 3 4, तो इसमें A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 इसको भी गिन के रखा है, और B इंटरसेक्शन A 5 को भी गिन के रखा है। समझ में आया ना? ये B हुआ और ये A हुआ, उसको भी गिन के रखा है। समझ में आ रहा है ना? हेलो हेलो हेलो। यस सर यस सर। Yes. और उसने बोला है ऐसा नहीं चाहिए हमको, ऐसा ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए हमको, ऐसा सेम है बोल दिया है ना? ये ना बोला है?
Yes, यही sir. बोला है ना हेलो। तो टोटल नंबर इसका आधा होना चाहिए, इसका आधा होना चाहिए। हेलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. लेकिन आधा होगा, लेकिन हाँ और एक का ऑर्डर पेयर बनेगा ही नहीं, इसलिए 41 आंसर हो जाएगा। हाँ, एक का ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि 5 का तो एक ही है ना। ओए, एक एक सबसेट 5 ही तो बनेगा। हेलो 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 हेलो। जब a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 5 होगा, भाई समझ में Yes, आ रहा sir. है? हेलो, a इक्वल टू 5 b Yes, इक्वल टू 5 होगा तो भी तो a इंटरसेक्शन b 5 होगा। हेलो, yes, sir. लेकिन ऐसा तो एक ही है, ऐसा तो एक ही है। तो हम क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? या तो तुम 3 to the power 4 प्लस 1/2 कर दो रिक्वायर्ड आंसर, और नहीं तो क्या करो, और नहीं तो क्या करेंगे? नहीं तो बाई 2 + 1 कर देंगे। नहीं, हाँ, बाई समझ 2। गया। यस नहीं नहीं सर। नहीं 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 नहीं, बाई 2 + 1 सर नहीं बाई करेंगे। 2 के नियरेस्ट वो आगे जो नंबर है वो ले लेंगे। हाँ, समझ गया ना? ये कैसे हुआ, समझ में आया? हमने क्या किया, ऐसा वाला एक था, बाकी सब दो दो था, इसलिए ये ऑड नंबर आ रहा है। समझ में आ रहा है? हेलो, समझो बात को। ये तो सब इवन आना चाहिए था ना, ये आंसर इवन आना चाहिए था। कोई समझ पा रहे हैं? ए बी यस ए सर। बी ये करके ये इवन आना चाहिए था। ये ऑड क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो केस है ना, ये एक ही है, ऐसा वाला केस एक ही है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू बी इक्वल टू 5, ये वाला केस एक ही है। दोनों तो इक्वल है ही, ऑलरेडी इक्वल है, तो इसका तो ऑर्डर पेयर बन ही नहीं रहा है। आर यू गेटिंग इट? हेलो। तो हमने क्या किया, गिनने के लिए आसान करने के लिए हमने क्या किया, एक ऐड कर दिया, जाओ इसको भी 2 बना दिया और डिवाइड बाय 2 कर दिया। समझ में आया? हेलो हेलो, यस सर। समझ में आया? ये जो हमने लास्ट वाला क्या, बोले सर, एक जो सेट है उसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, वो सर वापस एक बार बताइए ना। देखो ये कब होगा, जब a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 5 होगा, मतलब a ऑलरेडी इक्वल टू b हो रहा है, तो इसका क्या ऑर्डर पेयर बनाओगे? a कॉमा b एंड b कॉमा ऑर्डर पेयर आर सेम बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 5। ये मीनिंग ही नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ। समझ गया? क्योंकि बोथ आर यस सर। ऑलरेडी इक्वल टू 5। समझ गया भाई? यस सर। यस। हाँ, ऐसा तो एक ही बनेगा, इसीलिए ऑड आ रहा है। देखो, इसीलिए आंसर ऑड आ रहा है। ये ऑड है ना, क्यों ऑड आ रहा है? 80 ऐसा बना, 40 40 ऐसा पेयर बनेगा। समझ में आ रहा है? +1 कौन सा 1? ये वाला केस। तो हमने गिनना है, इसका आधा होगा, तो हमने क्या करेंगे, या तो 80/2 + 1 करेंगे, नहीं तो क्या कर दिया, ये तो ऑड हो रहा है, +1 करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। जाओ, तो जो आंसर आएगा वही है। समझ गया? समझा कि नहीं भाई लोग? नहीं समझा तो बोलो, नहीं समझा फिर से कर देते हैं। इज द आंसर। आ गया सर। समझ गया? समझ गया? समझ गया तो मेरे पास और एक हथियार है। समझ गया तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ अभी। समझ गया बोल दिया ना सब लोगों ने? और ये क्वेश्चन कभी नहीं आया है, ये मैंने तुमको, मैं ये क्वेश्चन मुझे तो पता हो गया था कि ये क्वेश्चन मैं करूंगा, तो मैंने एक क्वेश्चन डिजाइन कर किया है। ये क्वेश्चन तुम करोगे अभी, और मुझे तुम प्रूफ दोगे कि हाँ सर हमको समझ में आया था, है ना? द क्वेश्चन गोज लाइक दिस। लिखो, क्वेश्चन लिखो। द नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स, एकदम सेम क्वेश्चन दूंगा मैं तुमको, एकदम सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। द नंबर ऑफ unordered pairs a comma b of subsets of the set s equal to 1 2 3 4 10। 10 एलिमेंट है ना, 1 से लेके 10 तक है। such that a intersection b equal to 5 and a union b equal to s is
इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, मैं जब तक ऑप्शन लिखता हूं। 2 की पावर 10, 2 की पावर 9, 20c2, 1 plus 2 to the power 9। क्वेश्चन समझाऊं कि अभी तो मुझे तो लगता है तुमको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन तो तुमको समझ में आ गया होगा ऐसा मुझे लगता है। सर 2 की पावर 9। ए, बहुत बढ़िया, इतना जल्दी कर दिया। बताओ कैसे किया? यस सर। सर कौन किया? यहाँ पे पुष्पक? यस सर। हाँ बोलो। सर यहाँ पे थर्ड सेट भी अज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि ए यूनियन बी एस है, मतलब सब उन दोनों में जाना ही जाना है, थर्ड ऐसा नहीं हो सकता हाँ सर। और यहाँ पे 2 की पावर 10 तो इवन नंबर है, तो उसमें वो वाला केस ही नहीं बनेगा। बाई तो 2 कैसे करेंगे हुआ? तो 9 कैसे हुआ? हाँ बताओ बताओ कैसे 9 हुआ? सर 2 की पावर 10 बाई 2 कर देंगे क्योंकि ये अनऑर्डर्ड पेयर बोला है। अब तुमने सही बोला है, अब तुमने सही बोला है कि 2 की पावर 10/2 कर देंगे। कितने लोगों को समझ में आया ये? Yes, नहीं आया sir. तो नहीं आया बताओ। आंसर विल बी 2 की पावर 10/2। कितने लोगों को समझ में आया ये? नहीं आया तो नहीं बताओ, तब मैं कर दूंगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अगर नहीं आया तो। चलो एक तुम्हारा बार बता दीजिए। हाँ हाँ मैं वेट कर रहा हूँ। चलो करो करो, आई एम गिविंग यू टाइम। Correct है। करेक्ट तो है ही, मैं तो बोल ही दिया करेक्ट है ये। मैं बोल रहा हूँ कितने लोगों को नहीं समझ में आया, और कोई कर रहा है क्या, और कोई दूसरे तरीके से कोई कर रहा है क्या? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। एनीबॉडी एल्स आर डूइंग? एनीबॉडी एल्स? आर यू डूइंग इट? डू आई नीड टू सॉल्व इट? कुछ तो बोलो। नो सर। नो सर। हो जाएगा, हो जाएगा, छोड़ दूं? यस अवनींद्र छोड़ूं? समझ में आ गया ना? समझ में आ गया कैसे हुआ 2 to the power 10/2? Exactly same concept, exactly same concept. And as Pushpak has said, will not have this option. Why this option will not be there? Because A union B equal to S दिया है, तो phi हो ही नहीं सकता, कोई भी इसका phi नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना? हेलो, दोनों phi नहीं हो यस सकता। मैंने कहने का मतलब दोनों phi, कोई एक phi हो सकता है लेकिन दोनों phi नहीं हो सकता। कोई एक फाई होगा तो दूसरा सेट पूरा का पूरा एस होना पड़ेगा, नहीं? हेलो, लेकिन दोनों फाई यस एक साथ नहीं होना पड़ेगा। जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, फाई यूनियन फाई विल बिकम फाई, बट दैट इज नॉट द केस हियर। तो ये तीसरा जो केस है, पहला वाला क्वेश्चन में जो तो थर्ड केस हमने बनाया था, ये वाला केस, ये वाला केस होगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है। इसको मैं तुमको और एक तरीका से करके दिखाऊं क्या? एक ऑल्टरनेट मेथड करके दिखाऊं क्या? यस सर। अब देखो, इसमें मैं एक alternate method just to so that you can do this kind of question. Some other kind of questions are also there like this, so you can use this method. Okay, तो देखो हमको करना क्या है, A इंटरसेक्शन B, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, A यूनियन B इक्वल टू S, ये ध्यान रखना है हमको A और B बनाने के टाइम में। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं A में 2 एलिमेंट लिया, 2 एलिमेंट लिया, कोई भी 2 एलिमेंट लिया, बाकी का जो 8 एलिमेंट है ना, बाकी का जो 8 एलिमेंट है वो बी में आना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगर 3 हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 7 होना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? टोटल 10 होना है, क्योंकि एस बनना है ना, यूनियन लेंगे तो एस बनना है। समझ में आ रहा है? हेलो, तो मैं अगर कोई भी एक सेट बनाऊं, ए या बी में से कोई एक सेट बनाऊं, ऑटोमेटिकली द अदर सेट विल बी मेड। डू यू एग्री? हेलो, डू यू एग्री? यस सर। एक मैं किसी एक से एक सेट को बनाऊं
तो दूसरा सेट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। मैं इसमें 2 एलिमेंट लूंगा तो इसमें तो 8 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसमें 3 लूंगा तो इसमें 7 आ जाएगा, इसमें 0 लूंगा तो इसमें 10 आ जाएगा, इसमें 0 लूंगा तो इसमें 10 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? सो आई हैव टू मेक ओनली वन सेट, लेट मी मेक द सेट ए। तो ए में क्या क्या हो सकता है? 10 से 0 हो गया, 10 में से कोई एक, कोई भी, किसी को भी नहीं लिया मैं, तो बाकी बी में पूरा का पूरा 10 एलिमेंट चला गया, एंड दैट कैन बी डन ओनली इन वन वेज। समझ में आ रहा है? हेलो 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 Yes, sir. हेलो हेलो हेलो, समझ में आ रहा है? ए में मैं एक एलिमेंट ले सकता हूँ, तब बी में कितने हो जाएगा? लेफ्ट ओवर 9 एलिमेंट्स चला जाएगा, पूरा का पूरा चला गया उसमें, दैट कैन बी डन ओनली वन वेज। ए में मैं कोई 2 एलिमेंट लिया, बी में बाकी 8 चला गया, दैट कैन बी डन ओनली इन वन वे। समझ पा रहे हो? हेलो, ए में मैं 3 एलिमेंट Yes, लिया, sir. बी में बाकी 7 एलिमेंट चला गया ऑटोमेटिकली, दैट कैन बी डन ओनली इन वन वे। और ऐसे ही जाते रहेंगे, कहाँ तक जाएंगे? 10 NC C 10. 10, और ऑटोमेटिकली कोई एलिमेंट नहीं जाएगा बी में, वो भी दैट आल्सो कैन बी डन इन वन वेज। ये कौन है बताओगे? ये किसका एक्सपेंशन है? ये ये 2 ये की किसका पावर 10 एक्सपेंशन हो है? जाएगा. हाँ, 1 + 1 to the power 10, इसको क्या कहते हैं? 2 to the power 10, ये ना कहते हैं। अब Yes. इसमें a, b और b, a ऐसा कितने सेट है? डबल डबल है, हमने ये सबको गिन के रखा है यहाँ। ये ऐसा भी तो हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो रिक्वायर्ड नंबर विल बी हाफ ऑफ दिस, दैट इज 2 to the power 10 by 2। समझ गए हैं? ठीक है, हेलो, Yes, sir. समझ गए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये आया है 2012 में, 2011 वाला मैंने 2011 में जानबूझ, हाँ 11 वाला मैं जानबूझ के स्किप किया हूँ, मैं जानबूझ के स्किप किया हूँ, जानबूझ के किया हूँ मैं, जानबूझ के मैं स्किप किया हूँ। आ रहा हूँ 11 वाले में भी आ रहा हूँ, डोंट वरी। द टोटल नंबर of ways in which 5 balls of different colors can be distributed among 3 students so that each person gets at least 1 ball is options. Your options are this: A 75, B 150, C 210, and D option is 243. Read the question carefully. तो 360 ऑप्शन 360 तो ऑप्शन ही नहीं है, नन ऑफ दिस भी नहीं है। ये कौन सा है? कौन सा है ये कुछ से काइंड का है, कौन सा काइंड का है ये? Which kind? ये पहला वाला जो 2 क्वेश्चन था वो कोई काइंड का नहीं था, वो तो एक सेट का था, हमने कॉमन सेंस लगाया उसमें। ये लेकिन एक काइंड का है जो हम पढ़ के आए हैं। कौन सा काइंड का है? क्वेश्चन पढ़ो और बताओ। हमने ऐसा क्वेश्चन करके आए हैं, मैं बता दूं तुमको, इससे भी गंदा क्वेश्चन करके आए हैं, खतरनाक क्वेश्चन करके आए हैं। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट।
हाँ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लिखा है, डिफरेंट कलर्स, 5 balls of different colors. कितने लोगों को याद है डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन? बताया था यस सर, तुम उसी लोगों का को? है। यस सर उसी का है। हाँ अभी समझ में आ गया। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, कैसे करना है? 5 डिफरेंट बॉल्स है, हमको 3 लोगों में बांटना है, तो कैसे बांट सकते हैं हम? मान लो 3 कलर ऐसा है BZR, 5 कलर है, मैं उनमें से 3 ले लिया BZR, तो कैसे बांट सकते हैं? मिनिमम एक तो सबको देना ही है 3 लोगों को। समझ में आ रहा है? हेलो, इसका एक दिया, इसका एक दिया, और 210 210 इज नॉट द करेक्ट आंसर। 150 कहीं अरे एक एक करके बोलोगे तो हो जाएगा। हाँ 150 इज द आंसर। द क्वेश्चन इज हाउ। एक ऐसा होगा क्या 1,1,3? यस समझ सर में आ रहा है? हेलो हेलो, यस सर एक केस ये बनेगा, केस 1, और क्या बनेगा, और क्या क्या बन सकता है? 2,2,1 2,2,1, और कुछ बन सकता है क्या? और कुछ बन सकता है क्या? नो सर। क्यों नहीं? 3 का तो हमने बना लिया, 3,2 में जाना पड़ेगा। 3,2 में जाएंगे तो एक में 0 आ जाएगा नहीं? सर लेकिन Yes, sir. एटलीस्ट ईच पर्सन गेट्स वन। हाँ तो और केसेस नहीं बनेंगे। ठीक है, तो केस 1 का डिवीजन कितने होंगे? डिवीजन 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 क्या था? 5 फैक्टोरियल बाय, और याद है 3 1 factorial फैक्टोरियल 1 3 फैक्टोरियल factorial 3 फैक्टोरियल इनटू 1/2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल क्योंकि आया, क्योंकि 1 1 है। ये डिवीजन हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन 3 factorial इसका क्या होगा?